السلام علیکم ایوری ون. تو آج ہم لوگ کلاس 7 کا 14 چیپٹر نمبر 14 پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا نام ہے مولانا آزاد. یعنی اس کہانی میں ہم کس کے بارے میں پڑھنے والے ہیں؟ مولانا آزاد کے بارے میں، ہے نا. اور کہانی پڑھنے سے پہلے جو ہے ہم اس کے کچھ الفاظ معنی دیکھ لیتے ہیں، مشکل الفاظ، جس سے ہمیں کہانی سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. ہمیشہ ہم نے اسی طریقے سے پڑھا ہے. پہلا الفاظ ہے عالم دین، یعنی دین کا علم جاننے والا. جس کو دین کا علم ہوتا ہے، ایک دنیا کا علم ہوتا ہے نا، جس میں انسان ڈاکٹر، وکیل، ہے نا، جج سب بنتا ہے. لیکن ایک علم، دین کا علم ہونا، یعنی اپنے دھرم کے بارے میں، اپنے اسلام کے بارے میں جانکاری رکھنا، کیا ہے وہ دین کا علم ہے. واعظ کرنا یعنی کیا ہے؟ نصیحت کرنے والا کیا کہلاتا ہے؟ واعظ. پرورش کرنا یعنی پالنا پوسنا، تربیت کرنا، ہے نا، تعلیم و تربیت کرنا. مطالعہ کرنا یعنی پڑھنا، ہے نا، جانکاری حاصل کرنا، سرچ کرنا، ہے نا. تخلص یعنی وہ مختصر سا نام جو شاعر کیا کرتا ہے؟ اپنے شعر میں استعمال کرتا ہے. یعنی جب بھی شاعر جو ہے شعر لکھتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے نام کی جگہ پہ شارٹ نام، ٹائٹل یوز کرتا ہے. تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ تخلص کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ تخلص کہلاتا ہے نا. جریدہ یعنی اخبار، رسالے کو کیا کہیں گے؟ جریدہ. بیدار ہونا یعنی جاگتے ہوئے رہنا، ہوشیار ہونا، بے خبر رہنا، باخبر ہونا، سوری. اور خطبات کا مطلب، خطبہ کی جمع ہے پہلے تو یہ، خطبہ کی جمع خطبات یعنی تقریر کرنا، بیان کرنا. ایڈیٹر یعنی کتاب، رسالے یا اخبار کا مدیر، یعنی رسالے اخبار جاری کرنے والا کیا کہلاتا ہے؟ ایڈیٹر. مجاہد یعنی جہاد کرنے والا کیا کہلائے گا؟ مجاہد، ہے نا. جاں باز، اللہ کی راہ میں لڑنے والا کیا کہلائے گا؟ مجاہد. مستحکم ہونا یعنی مضبوط ہونا، ارادے کا مستحکم ہونا یعنی ارادے کا پکا ہونا، ارادے کا مضبوط ہونا. اتحاد یعنی دوستی کرنا، محبت کرنا، ایک ہو جانا. اتحاد، اتفاق سے رہنا یعنی دوستی اور محبت کے ساتھ رہنا. نظر بند کرنا یعنی نقل و حرکت پر کیا کرنا؟ پابندی کرنا. یعنی کسی کے اوپر ایک جادو ٹونا ٹائپ، مطلب ایسا کر دینا کہ وہ کچھ کرنے کے لائق نہ رہے، ہے نا. محب وطن یعنی وطن سے محبت کرنے والا کیا کہلائے گا؟ محب وطن. محب جو ہے محبت سے نکل رہا ہے نا، تو وطن سے محبت کرنے والا کیا کہلائے گا؟ محب وطن. صعوبت یعنی صعوبت کی جمع ہے، پریشانیاں کیا کہلاتی؟ صعوبتیں. اس کے بعد ہے تاثیر یعنی اثر. اثر سے تاثیر نکال رہا ہے نا. اثردار ہونا یعنی جس میں کوئی تاثیر ہو. ٹھیک ہے، تو ہم کہانی جو ہے پڑھ. مولانا ابوالکلام آزاد کا اصل نام کیا تھا؟ محی الدین تھا. اصل نام کیا تھا ان کا؟ محی الدین. لیکن مولانا آزاد کے نام سے کیا ہوئے؟ وہ مشہور ہوئے، ہے نا. اور یہاں دیکھ رہے ہیں آپ آزاد کے اوپر یہ جو بنا ہوا ہے نا، یہ کیا ہے؟ ان کا تخلص. یہی کیا کہلاتا ہے؟ ان کا ٹائٹل کہلاتا ہے. یعنی وہ اپنے شعر میں یا نظم میں جب بھی وہ لکھتے تو کیا لکھتے؟ آزاد لکھتے. جو یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ کیا ہے؟ شاعر اپنا نام کے کیا کیا، اس کا استعمال کس طریقے سے؟ تخلص کے طور پر استعمال کیا، یعنی ٹائٹل کے طور پر استعمال کیا، ہے نا. ابوالکلام آزاد جو ہے ابوالکلام آزاد کب پیدا ہوئے؟ 1888 میں پیدا ہوئے. کہاں پر؟ مکہ میں، ہے نا. کتنی پاک جگہ پہ، کتنی معزز جگہ پہ ان کی پیدائش ہوئی، ہے نا. ان کے والد جو ہے اپنے زمانے کے کیا تھے؟ عالم دین تھے. یعنی دین کا علم حاصل کرنے والے پڑھے لکھے لوگ تھے، ہے نا. دیندار سے زیادہ جڑے ہوئے تھے، اللہ، روزہ، نماز، ہے نا، یہ سب چیزوں سے جڑے ہوئے لوگ تھے. اور مشہور واعظ تھے، یعنی مشہور تھے وہ اپنے علاقے میں. کس لیے مشہور تھے؟ نصیحت کرنے میں مشہور تھے، کیونکہ وہ لوگوں کو کیا کرتے تھے؟ بہت نصیحتیں کرتے. مولانا آزاد کی پرورش ایسے خاندان میں ہوئی جو مذہبی مزاج رکھتا تھا، ہے نا. یعنی ان کے پورے خاندان میں جتنے بھی لوگ تھے وہ کیسے لوگ تھے؟ ہر کوئی دین سے جڑا ہوا تھا، مذہب سے جڑا ہوا، ہے نا. تو ویسے ہی ان کی پرورش ویسے خاندان میں ہوئی. انہیں بچپن سے مطالعے کا شوق تھا، یعنی جانکاری حاصل کرنا، ہے نا، جانکاری اکٹھا کرنا، سب چیزوں کے بارے میں جاننا سمجھنا کیا تھا؟ ان کا شوق تھا. مگر ان کے والد کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ وہ کورس کی کتابوں کے علاوہ ادھر ادھر کی کتابیں پڑھے اور وقت کیا کرے؟ خراب کرے. یعنی ان کے والد کو یہ چیز پسند نہیں ہوتی ہے نا. بہت سارے اس ٹائم کے پیرنٹس تھے، اب تو پھر بھی زمانہ بدل گیا، آپ کے پیرنٹس پھر بھی الاؤ کرتے ہیں کہ آپ ہر طریقے کی چیزیں کتابیں پڑھو. لیکن ہمارے بھی ٹائم پہ جو ہے، اور اس سے پہلے کا، یہ تو 1888 کا ہے نا. تو اس ٹائم میں ہر کوئی جو ہے پیرنٹس سوچتا تھا کہ بس اسکول کی کتابیں پڑھے اور اسکول کی کتابیں پڑھ کے نمبر لائے اور پاس ہو جائے اچھے نمبر سے. تو یہی ان کا مین مقصد ہوتا ہے. مگر جو ہے وہ ادھر ادھر کی کتابیں پڑھے اور وقت خراب کرے، وہ ایسا بالکل نہیں چاہتے تھے ان کے والد. لیکن مولانا آزاد کا شوق جو ہے کسی طرح کم نہیں ہوتا تھا. وہ اپنا یہ شوق اس طرح پورا کرتے، ایک جب خرچ سے کیا کرتے؟ موم بتیاں خرید کر لاتے، اور جب گھر کے تمام لوگ سو جاتے تو موم بتی جلا کر لحاف کے اندر
पढ़ते, है ना। इस सिलसिले में उन्होंने एक मरतबा क्या किया था, लिहाफ भी जला दिया था, यानी कंबल भी जला दिया था। क्या करते, अपने पॉकेट खर्च से मोमबत्ती लाते और जब सब लोग सो जाते तो फिर वो अंदर कंबल के अंदर मोमबत्ती जला करके क्या करते, दूसरी किताबें पढ़ते। क्योंकि अगर कोई दूसरा अगर किताब पढ़ते हुए देख लेगा तो वो क्या करेगा, उनकी शिकायत कर देगा और फिर उन्हें डांट पड़ेगी। इस वजह से वो हर किसी से छुपा करके क्या करते, दूसरी किताबों का मुताला करते, है ना। तो ये इनकी तस्वीर है मौलाना आज़ाद की, देख सकते हैं। उसके बाद मौलाना आज़ाद की अदबी ज़िंदगी का आगाज़ कब होता है, वो 11-12 साल की उम्र में हो जाता है। यानी वो 11-12 साल की उम्र में क्या करते हैं, मुताला करने लगते हैं और लिखने लगते हैं। इन्होंने 13 बरस में क्या करी, फ़ारसी की तालीम मुकम्मल की। उनका हाफिज़ा जो है बलागा तेज़ था, यानी फ़ारसी में बहुत अच्छे थे और फ़ारसी की तालीम उन्होंने जो है 13 साल की उम्र में ही हासिल कर ली थी। वो पहले क्या थे, शायरी, और बाद में निसरी की जानिब क्या हुए, मुतवज्जा हुए। यानी पहले उन्होंने क्या करी, शायरी करी और उसके बाद जो है वो कहानियों की तरफ लिखने लगी, मुतवज्जा हुए यानी लिखने लगी। मौलवी अब्दुल वाहिद ने उनका तखल्लुस क्या रखा था, आज़ाद। मौलवी अब्दुल वाहिद ने क्या रखा था, तखल्लुस। उनका टाइटल क्या रखा था, आज़ाद। इसके बाद उन्हें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम से क्या मिली, शोहरत मिली। यानी कि अब हर कोई उनको किस नाम से जानने लगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को। महिउद्दीन जो उनका असली नाम था, उससे बहुत कम ही लोग जानते थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 15 बरस की उम्र में रिसानुल सिद्दीक जैसे जरीदे की अदारत जो है की। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने क्या किया, 15 साल की उम्र में लिसानुल सिद्दीक जो है रिसाला निकाला और लिख के उसमें, है ना, लोगों को बताने लगे कि देश दुनिया में क्या चल रहा है, किस तरीके की राजनीति खेली जा रही है ना। और 20 साल की उम्र में अखबार अल हिलाल के एडिटर बने और बड़ा नाम पाया। अब जैसे वो 20 साल के हुए तो उन्होंने कौन सा अखबार निकाला, पहला अल हिलाल, है ना। इसके बाद अल बिलाग जारी किया। अल हिलाल के बाद उन्होंने क्या किया, अल बिलाग जारी किया, है ना, अल बिलाग। इन दोनों अखबारों ने क्या किया, हिंदुस्तान के मुसलमानों को ख्वाब गफलत से बेदार करने में अहम रोल अदा किया। इन अखबारों के ज़रिए से क्या हुआ, मुसलमान लोग जिन्हें पता नहीं था ना कि अंग्रेज़ जो है वो किस तरीके से हिंदुस्तान को बर्बाद कर रहे हैं, किस तरीके से खा रहे हैं, और मुसलमान के नहीं पढ़ने की वजह से, बगैर तालीम याफ्ता होने की वजह से जो है किस तरीके से जो है हम पीछे रह जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में जो ये क्या की, इन दोनों अखबारों के ज़रिए से मुसलमानों को आगाह किए। हिंदुस्तान की आज़ादी की जद्दोजहद में मौलाना की खिदमत नाकाबिल फ़रामोश है। यानी कि आज़ादी के लिए उन्होंने जितनी अपनी खिदमत अंजाम दी है वो क्या है, नाकाबिल फ़रामोश है। यानी कि इतनी उन्होंने खिदमत अंजाम दी है कि वो क्या है, हम उसको मतलब कभी भी भूल नहीं सकते। वो आज़ादी की तहरीक के मुजाहिद थे, वो आज़ादी के लिए लड़ने वाले क्या थे, मुजाहिद थे। यानी वो उन्होंने बहुत लड़ाई करी, बहुत जो है उन्होंने तकलीफ़ें बर्दाश्त करी, बहुत बार जेल गए, मार खाई, है ना, अंग्रेज़ों की। उसके बाद हिंदुस्तान, वो आज़ादी की तहरीक के क्या थे, मुजाहिद थे। इन्होंने पहले बहुत महसूस कर लिया था कि हिंदुस्तान के अंदर नफरत के बीज बोकर अंग्रेज़ अपनी हुकूमत क्या कर रहा है, मुस्तहकिम कर रहा है, यानी मजबूत कर रहा है। यानी आज़ादी के लिए क्या कर रहा है, वो बहुत पहले समझ गए थे कि हिंदुस्तान के अंदर क्या कर रहा है, अंग्रेज़ नफरत के बीज बो रहा है और लोगों को क्या कर रहा है, और अपनी हुकूमत को क्या कर रहा है, मजबूत कर रहा है। मौलाना आज़ाद ने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद पर क्या किया, ज़ोर किया। वो क्या चाहते थे कि हिंदू मुसलमान सब क्या करें, आपस में मेल जोल करके रहें, मोहब्बत से रहें, एक दूसरे को समझे और एक दूसरे के साथ दे, ताकि अंग्रेज़ क्या करें, उनके बीच में फूट ना डाल सके। इन्होंने अपने खुतबात और मज़ामीन में भी ये बताया कि मुश्तरका तहज़ीब और कौमी यकजहती की तस्वीर को आम किए बगैर जो है आज़ादी मुमकिन नहीं है। उन्होंने अपने अखबारात में, है ना, खुतबात में ये बयान जो है बार बार किया कि हिंदू मुसलमान जब तक कौमी यकजहती के साथ, यानी एकजुट होकर के एक साथ अगर हम नहीं रहेंगे हिंदुस्तानी, तब तक के जो है हमें आज़ादी मिलने वाली नहीं है। अपने सियासी नज़रियात और पुरजोश सहाफ़त की वजह से मौलाना को कई बार क्या हुआ, नज़रबंद किया गया। यानी उनके ऊपर जो है इस तरीके से काम किया गया कि वो कुछ ना कर सके, है ना, वो कुछ बोल ना सके, कुछ समझ ना सके, ऐसे उनके ऊपर, है ना, टोटके अपनाए गए। और मगर वो बहादुर और निडर सिपाही की तरह वतन की आज़ादी के लिए क्या करते रहे, जद्दोजहद करते रहे। लेकिन उसके बाद भी जो है वो जैसे ही उस जोन से बाहर आते हैं ना, उस चीज़ों से बाहर आते, तो वैसे ही वो क्या करते, वापस से जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ काम करना, लिखना, है ना, लोगों को बोलना चालू कर देते। मौलाना आज़ाद क्या थे, सच्चे मुहिब वतन थे। यानी वो सच्चे इंसान थे जो क्या करते थे, अपने देश से जो है सच में मोहब्बत करते थे और सच में उसकी आज़ादी के लिए उन्होंने काफ़ी जद्दोजहद बर्दाश्त करा, उन्होंने तकलीफ़ें। अब इन्होंने वतन की आज़ादी के लिए क्या हुए, वो कैदो बंद की सऊबतें झेले, लेकिन अपने रास्ते से नहीं हटे। यानी उनको जेल भी हुई, है ना, वो जेल में भी सालों साल बंद रहे। इन्होंने दो कौमी नज़रिए की क्या करी, मुखालिफत की है। वो मुखालिफत करी, यानी कि बार बार जो है वो इस चीज़ से क्या करते थे, चिढ़ते थे और इसके खिलाफ बात करते थे कि कभी भी जो है हिंदू और मुसलमान को क्या करना है, अलग रहकर काम नहीं करना है ना, साथ में रह के हर चीज़ों का मुकाबला करना है। मुसलमानों को तकसीम के खतरात से आगाह किया। यानी मुसलमानों को बहुत पहले से वो समझाते आ रहे थे कि अगर इसी तरीके से मामला चलता रहा तो क्या होगा, एक दिन हिंदू और मुसलमान को लेकर के क्या हो जाएगा, बंटवारा हो जाएगा मुल्क का, है ना। तकसीम के बाद जो फसादात हुए इससे वो बहुत अफसरदा हुए, क्योंकि वो पहले जान चुके थे कि ये इस तरीके का जो है हालात बन सकता है ना, कि हिंदू मुसलमान के नाम पर जो है अंग्रेज़ क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। इस वजह से जब सच में तकसीम हिंद हुआ, यानी हिंदू और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ, तो उन्हें सबसे ज़्यादा गम हुआ, क्योंकि वो आने वाली मुसीबत को जो है देख रहे थे कि अगर
ऐसा होता है तो आम जनता यानी गरीब लोग जो है किस तरीके से मारे जाएंगे और किस तरीके से बर्बादी का सामना करना पड़ेगा। इन्होंने दिल्ली की जामा मस्जिद में हिंदुस्तानी मुसलमानों के एक जलसे को खिताब किया। इस तकरीर के एक लफ्ज़ से जो है दर्दमंदी का इजहार होता है। यानी जब बंटवारा हो गया तो इन्होंने जो है दिल्ली कि जामा मस्जिद में जो है इन्होंने जो अपना खुतबा दिया था तो उसमें जो है जो बात उन्होंने कही उससे जो है उनके दर्द, उनके अंदर जितना दर्द है ना उससे पता चलता है कि उनको कितनी तकलीफ हुई इस चीज़ से, है ना। अजीज़ों, सितारे टूट गए तो क्या हुआ, सूरज तो चमक रहा है, इससे किरणें मांग लो और इन अंधेरी राहों में क्या करो, बिछा दो। क्या कह रहे हैं कि सितारे भले टूट गए हैं लेकिन क्या हो रहा है, सूरज तो चमक रहा है। यानी क्या बोल रहे हैं कि भले हमारा क्या हो गया, बंटवारा हो गया, हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हो गया, लेकिन सूरज चमक रहा है। यानी कि क्या कि अब कम से कम ये हुआ है कि अब हम आज़ाद हो गए हैं और अंग्रेज़ों का जो है बोलबाला खत्म हो गया और अंग्रेज़ों की गुलामी से क्या हुआ, हमें छुटकारा मिल गया, है ना। आओ इससे जो है किरणें मांग लो और इनकी अंधेरी राहों में क्या करो, बिछा दो। अब और क्या, जो सूरज चमक रहा है यानी जो अब आज़ादी हमें मिली है ना, इसी से क्या करो, इसका फ़ायदा उठाओ और अपनी राहों को क्या करो, अपनी राहों में बिछा दो। यानी कि अपनी ज़िंदगी को अब क्या करो, आसान करो और आज़ादी के साथ जी लो। अब जहाँ उजाले की सख्त ज़रूरत है वहाँ पर क्या करो, उजाला कर दो। अब आओ अहद करें कि ये मुल्क क्या है, हमारा। आओ क्या करें, अहद कर ले यानी वादा कर ले कि क्या ये हमारा क्या है, मुल्क है, हम इसके लिए हैं और इसकी तकदीर के बुनियादी फैसले हमारी आवाज़ के बगैर क्या है, अधूरे ही रहेंगे। यानी कि जब तक हम जो है इस मुल्क की आज़ादी तरक्की के लिए जो है हम अब जद्दोजहद नहीं करेंगे तब तक क्या होगा, हमारा मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। मौलाना आज़ाद, महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू से जो है क्या थे, बहुत करीब थे। कौन कौन, मौलाना आज़ाद, महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये तीनों जो है किससे करीब थे, मौलाना आज़ाद से। ये दोनों भी मौलाना की क्या करते थे, बहुत इज्जत करते थे और अपना क्या करते थे, करीबी दोस्त मानते थे और इनसे क्या करते, मशवरा भी लेते। किससे, मौलाना आज़ाद से। कौन, गांधी जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब मौलाना जो है बड़ी अच्छी ज़ुबान लिखते और बोलते थे, यानी वो लिखना पढ़ने में बहुत माहिर थे, ना, क्योंकि वो कहानियाँ, शेर व शायरी 10-12 साल की उम्र से ही शुरू कर चुके थे। इस वजह से इनकी ज़ुबान और बात करने का तरीका कैसा था, बहुत ही मीठा और बहुत ही अच्छा था। मतलब इसमें जो है बहुत बड़ी तासीर थी, यानी जब वो बात करते तो उनके एक शब्द में क्या थी, बड़ी तासीर थी, यानी बहुत जान पैदा कर देता था लोगों के अंदर। वो जब सुनते थे उनकी तकरीरें, उनके खुतबात बहुत अच्छी और ज़ोरदार तकरीर करते थे, है ना। अंग्रेज़ हुक्मरां जो है क्या, इनसे डरते थे, क्योंकि जब भी वो खुतबा देते लोगों को जमा करके तो लोगों के अंदर जो है बोलकर कितना जोश पैदा कर देते कि हर कोई अंग्रेज़ के खिलाफ हो जाता था और उनकी बात सुन के जो है उन अंग्रेज़ों को इतना डर होने लगता था कि ये जिस तरीके से लोगों को क्या कर रहा है, बहका रहा है, यानी कि लोगों को जागरूक कर रहा है। इससे क्या होगा, हर कोई हिंदुस्तानी हमारे क्या हो जाएगा, अंग्रेज़ों के खिलाफ हो जाएगा और अगर ये इसी तरीके से बोलता रहा तो हर कोई क्या करेगा, उनका विरोध करने लगेगा। इसलिए वो डरते थे। जंग आज़ादी के दौरान मौलाना ने जो तकरीरें की है वो बहुत अहम है। अब आज़ादी के बाद भी ये नहीं रुके, आज़ादी के बाद भी ये तकरीरें करते रहे, खुतबात देते रहे, लोगों को समझाते रहे कि अभी उन्हें जो है किस तरीके से कदम उठाना चाहिए, क्या करना चाहिए, है ना, कैसे करना चाहिए। आज़ादी के बाद वो पहले जो है वज़ीर तालीम बने। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद क्या थे, हमारे मुल्क के आज़ादी के बाद सबसे पहले कौन क्या बने, वो वज़ीर तालीम बने। वो तालीम से समाज में क्या लाना चाहते थे, तब्दीली लाना चाहते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि तालीम ही जो है एक बहुत बड़ा ज़रिया है लोगों की में बदलाव लाने का और मुल्क को आगे बढ़ाने का। इंसानी शऊर की तरक्की के लिए तालीम क्या है, लाजमी समझते थे वो। यानी वो जानते थे कि तालीम के बगैर इंसानी शऊर यानी इंसान का अकल जो है ना वो सही तरीके से काम नहीं करेगा। जब तक उसके पास तालीम नहीं होगी वो सही गलत की पहचान नहीं करेगा, सच्चाई और बुराई, अच्छाई और बुराई की जो है फ़र्क नहीं कर पाएगा। औरतों की तालीम के हामी थे, यानी वो जानते थे कि अगर मुल्क को और तेज़ी से, है ना, समाज को अगर और तेज़ी से जो है आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले जो है मर्द से ज़्यादा पहले हमें किसकी तालीम ज़रूरी है, औरतों की तालीम ज़रूरी है। इस वजह से वो औरतों की तालीम के लिए जो है क्या करते थे, पहल करते थे। इन्होंने मुल्क की तालीमी निज़ाम का तफसीली जायज़ा लेने के लिए कई कमीशन कायम की। यानी कि वो क्या करते थे, कमीशन बनाते थे, किस लिए, कि ताकि वो पूरे मुल्क का, हिंदुस्तान का क्या करे, वो जायज़ा ले सके कि कौन से इलाके में कितने पढ़े लोग हैं, कितनी लड़कियां पढ़ी हुई है, कितनी औरतें पढ़ी हुई, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने बच्चे नहीं पढ़ रहे। तो ये सारी चीज़ों का मुआयना करने के लिए क्या करते थे, वो बड़े अलग अलग कमीशन कमेटी बनाते थे, है ना। लोगों को इकट्ठा करते थे और उन लोगों का एक ग्रुप बनाते थे, यानी कि वो कमेटी या वो ग्रुप क्या करेगी, सिर्फ इस चीज़ का जायज़ा लेगी, है ना। इन्होंने जो बड़े सकाफती अदारे कायम किए, इसमें साहित्य अकादमी, संगीत अकादमी और ललित कला अकादमी क्या है, बहुत मशहूर है। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन इन्हीं का कायम किया हुआ अदारा है ना। ये सारे अदारे इन्होंने बनाए थे। साहित्य अकादमी है, संगीत अकादमी और ललित कला, ये सारे टॉपिक्स पर इन्हीं के फील्ड में इन्होंने क्या किया था, कम्युनिटी मतलब रिलेशंस बनाए थे और काउंसिल बनाया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जो मज़ामीन, खुतबात और मुकालात और मकातीब के मजमूए हैं वो किताबी सूरत में क्या हुए, शाये हो चुके। यानी कि उनके जितने भी खुतबात हैं और जितने भी उनके मज़ामीन हैं, है ना, और जितने भी उन्होंने मजमूए लिखे हैं वो सब किस में हमें मिलते हैं पढ़ने के लिए, कौल फैसल में, तज़किरा मुलाकात आज़ाद में, तर्जुमा कुरान में, यानी कुरान को उन्होंने जो तर्जुमा किया है वो बारे खातिर में, और ये सब क्या है, उनकी मशहूर किताबें हैं। मौलाना का इंतकाल कब होता है, 1988 में होता है, ठीक है। और 1888 में क्या होता है, उनकी पैदाइश, और 1985 में क्या हुआ, उनकी वफ़ात होती है, ठीक है। तो ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है।
اور اس کے क्वेश्चन आंसर हमारे वीडियो में करेंगे। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और चैनल को जो है आप लोग सब्सक्राइब करें प्लीज़, और कमेंट करें और कमेंट में बताएं कि क्या है नहीं है। कुछ भी कमेंट्स कर सकते हैं, कुछ मशवरा दे सकते हैं, और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।